स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपका होस्ट राहुल सावन। आज का हमारा जो वीडियो है वो है करियर पे, फोकसिंग ऑन एमबीबीएस। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है आर्यन। आर्यन, हमने कुछ क्वेश्चन जॉट डाउन किया आपके लिए। विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। So, hi guys, I'm Aryan Mehta, currently a second year MBBS student at MGIMS Sevagram. So, actually, Rahul is my batchmate from Our Lady of Salvation High School. Like, we were schoolmates, and it's nice meeting you, Rahul, again. Yeah, same here. Yeah, so as आर्यन ने बताया कि वो एमबीबीएस कर रहे हैं। आर्यन, अभी हमें ये बताइए कि आपने जो एमबीबीएस चल रहा है आपका, तो ये आपने एमबीबीएस स्टार्टिंग से सोचा था कि नो आफ्टर 12 आई गेस कि हम मुझे एमबीबीएस करना है, राइट? तो आपका जो करियर पाथ पहले से ही फोकस था क्या? See, the thing that has happened in my life, ना, तो तुझे भी पता है कि 9th standard में actually there was a thing that had happened in my life कि we were told to actually say what we want to be in life. So there was a cool English chapter जिसमें cardiologist एक word था. I found that word very fascinating. So मैंने तब इतना नहीं ध्यान दिया था कि ये होता क्या है cardiologist, and I just said कि हाँ कि मुझे cardiologist बनना है in front of the class. Or that time also I lost my Nana ji because of heart reasons. So it was in 9th standard where I thought actually कि मुझे डॉक्टर बनना है. So after 10th happened, 10th was a very big ride for me because I had prepared well and though results were not very good. Yeah. So जो भी हुआ वो हुआ. So at that time I thought कि whatever I have thought in mind, I will pursue that. So I chose science. Apart from मतलब मेरे family background is completely of commerce, and leaving that and choosing science was a hell of a ride because I remember my mom actually persuading me कि ये सब मत कर because she thinks that doctors don't have a life. Yeah. I think she might be true partially. Like she was कि पूरा दिन हॉस्पिटल में रहना है, ये वो पेशेंट्स के साथ रहेगा, कैसे रहेगा? तो but it was a thing कि बस ठान लिया. So I chose science in 11th standard and फिर junior college हुआ. I had PCMB in my 11th standard initially, just to get physics right. मतलब physics के लिए जो maths लगती है, like integration, differentiation, and different sequences, series, जो भी important part है उसके लिए मैंने 11th में maths लिया था. And I understood maths is not my cup of tea in 11th standard because it required a lot of practice and I was not practicing that much. So for 12th, I dropped maths and chose psychology as a subject because it was easier and it was also a fascinating subject. कि जैसे सुनते साइकोलॉजिस्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है, इट वाज अ फैसिनेटिंग वर्क. सो आई चोज दैट फॉर माय 12th स्टैंडर्ड एंड फिर मैंने पीसीबी और साइकोलॉजी का 12th दी एंड 12th हुआ. आई गिव माय नीट फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, इन नीट फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड अराउंड 450 ऑफ 720 मार्क्स. सो द थिंग विद नीट इज it is basically national entrance and eligibility cum entrance test. So national eligibility cum entrance test में क्या होता है actually there's a paper of 720 marks, 3 hours offline paper. So तब के टाइम में एम्स भी था. तो the thing that happened is कि मैंने 3 hours में मैंने haphazardly marking की और कुछ भी mistakes किए तो मेरे स्कोर को 450 आई. So according to 450 marks in that year in 2018 when merits were not so high because the paper difficult आते थे apart compared to now. तो उस मार्क्स पे मुझे बीडीएस मिल गया था मुंबई में नायर कॉलेज में. बट आई हैड अ ड्रीम ऑफ परस्यूइंग एमबीबीएस, लाइक नॉट डेंटल एज अ कोर्स. इट इज अ गुड कोर्स बट फॉर मी इट वाज ऑलवेज एमबीबीएस. सो आई ड्रॉप दैट ईयर. 12th में मैंने ड्रॉप लिया. 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया एक साल मैंने खुद प्रिपेयर किया एंड आफ्टर दैट आई गिव नीट अगेन. आई स्कोर्ड 570 दिस टाइम इन 2019 एंड सिमिलरली इन 18 मेरा पेपर नीट खराब हुआ था but my AIMS was very good. AIMS all India ranked 2800 थी उस साल और AIMS 2019 ranked 2500 थी. Not a very starking difference because मैंने 19 में actually enjoy किया था पढ़ाई करना. I was not very serious. I was just studying every day but not very core preparation because I had completed the course already. अब मेरे लिए बस revision था. रिवीजन चल रहा था. So I gave that exam. I had an option between choosing AIMS Nagpur, which is a newer AIMS, like 2 साल ही हुआ है उसको, and choosing a college which is I'm currently in MJMS Sevagram.
So it's a central government college. Like 50% funds come from central government, 25% from state, and 25% from the trust, that is Kasturi Health Society. So, Okay. so according to that, I chose this college because it's a older college, and I'm enjoying my time here. Actually, Okay. So very well answered. So that has my been the whole journey. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपने अभी कहा आपने ड्रॉप लिया आपके 12th के बाद, सो मोस्टली जो पेरेंट्स का जो माइंडसेट होता है ना, नहीं यार ड्रॉप नहीं लेंगे, स्टूडेंट्स का भी होता है, पेरेंट्स का ही नहीं, स्टूडेंट्स का भी होता है कि नहीं ड्रॉप लेंगे थोड़ा पीछे आ जाएंगे, सो आप उनको क्या बताएंगे कि ड्रॉप लेना अच्छा होता है या बुरा होता है, उनको कोई गाइडेंस देंगे आप? See, the thing is, it depends. तेरा ये क्या है, तेरा ड्रीम क्या है? See, या what I feel is MBBS is a rewarding field, but बहुत टाइम बाद, like जब 10, 15, 20 साल इस फील्ड में दे देते हो, तब रिवॉर्डिंग हो जाता है. बट आई फील ये तो हर जगह होगा. लाइक इफ यू आर डूइंग टी बिजनेस, इफ यू आर इनटू इट फॉर 20 years, you'll have a nice well shop in Mumbai. या ठीक है, या ये बेस मेरा मान. Yeah. So I, according to वही है, तो सबको अपना ड्रीम को परस्यू करना है. Like I'll tell you what my family reacted was. My dad was okay. My dad has always been कि तुझे जो करना है कर, because he was not allowed to pursue what he wanted to in 11. My mom was very hell bent कि तुझे प्राइवेट में लेना चाहिए. Because BDS, see the thing is, either you get MBBS ranking wise, it is not according to the course कि कौन सा कोर्स अच्छा है. इंडियन पेरेंट्स को एमबीबीएस बेटर लगता है, ये राइट फैक्ट्स है. राइट बट या ये ऐसा कुछ नहीं है. बीडीएस इज अ वेरी गुड ब्रांच, एमबीबीएस इज अ गुड ब्रांच, बीएमएस इज अ गुड ब्रांच, and everything is a good branch if you do well in that, if you वेल या put your soul in that. So the thing is कि मेरी मम्मी ने बहुत persuade किया कि to get into a private college or a deemed university. She was very hell bent and she was ready to pay the donation. The thing about MBBS is that either you get through a government seat where you have to pay a lakh for a year, or you get into a private institute where you have to pay 12 to 13 lakhs a year, or either इन सबसे खराब, either you go into a deemed university. खराब in the sense फीस के हिसाब से, मिडिल क्लास फैमिली के लिए फीस is a very अफोर्डेबल या proper, very important thing. I won't say deemed colleges अच्छे होते हैं खराब होते हैं, सबके perks and benefits होते हैं, perks और cons होते हैं. So राइट the thing is, वहाँ पे 25-26 लाख फीस एक साल की है. It's a 5-year course. It takes around 1 crore from your wallet, right? या तो इसके वजह से तो आई वॉज वेरी श्योर कि करूंगा तो अपने मेरिट पे, तो नहीं या तो नहीं. तो मेरी मॉम ने स्टार्टिंग के 1 महीने जब तक काउंसलिंग थी तब बहुत फोर्स किया था, बट आई वॉज हेल्पेंट एंड शी अग्री. एंड व्हाट आई फील इज, सी, ये फील्ड में there's it's already a long field. आपने 1 साल ज्यादा लिया, 2 साल ज्यादा लिया, 3 साल ज्यादा लिया, it doesn't matter. I have batchmates who are 25 years old. I am 19. When I was 19, I joined 18. When I joined the college, I was 18. So 18, 19, just transition हुआ वाले phase में. तब मेरे बैचमेट्स 25 years के भी थे, 23 years के भी थे, 22 years के भी थे. ठीक है, and not only boys, there were girls also who were of similar age who had given more than 1 attempt, 2 attempt, 3 attempt. So what I feel is, once you get into it, no patient would ask आपके कितने अटेम्प्ट लगे थे, आपका कॉलेज कौन सा था. इट्स जस्ट कि तुम उनको अच्छे से ट्रीट कर पाओ, उनसे आप अच्छे से बात करो, उनको आप अच्छे से फील करो, उनको एक, जब उनका मुसीबत का टाइम हो उनसे आप कनेक्ट करो, बस उनको वही चाहिए. ओके सो आई सो फील इफ यू आर अ वेरी परस्यूएट, मतलब आपको ये करना ही है, तो आपको पता है आपको ये एक ऑप्शन है, टाइम जाएगा तो भी नो इशू. then ठीक है. अगर आपको लगता है कि हाँ आप 1 साल पीछे हो जाओगे, तो मैं ये बोलता हूँ कि वैसे भी एमबीबीएस की आज जर्नी रुकेगी नहीं, एमडी आएगा, सुपर स्पेशलिटी भी आएगा, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो. ईदर यू हैव टू हैव अ माइंडसेट ऑफ अ मैराथन. आपको ये याद रखना है कि मैराथन में अगर आप स्टार्टिंग में स्लो भाग रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हारोगे. आप स्टार्ट में स्लो हो सकते हो, बट एंड में आप कवर कर सकते हो. यही बात है. तो ये बात आई ऑलवेज ड्रॉप ले लो. ये बात Because सर्विस it's नेट a से अच्छे कोई नहीं बता सकते कि मैराथन तो स्लो ही स्टार्ट करना पड़ता है. yeah, Yeah, cross so country. yeah, cross country memories, bro. So very well answered, Aryan. So आपने जब भी अभी जो मिथ था वो बस्ट कर दिया कि इंडियन पेरेंट्स का टिपिकली जो माइंडसेट होता है कि गैप लेना ठीक नहीं होगा, वो पूरा हटा दिया कि आपने इट्स ओके टू टेक गैप. अपने आप से जो अपने आप का टाइम लो, अपने आप से ग्रो हो जाओ, सो विदाउट एनी कंफ्यूजन, राइट? And I want to add one thing कि I have a friend, ठीक है, मतलब I have met her online, and Okay. the thing about her is उसने 8th standard से अपने जेई की कोचिंग स्टार्ट की थी. She cracked जेई in 12th. उसका जेई एडवांस निकल गया.
बट शी वाज बिफोर काउंसलिंग उसको लग शी वाज नेवर इमेजिनिंग हरसेल्फ कि वो कर लॉयर बन सकती उसको ये नहीं लग रहा था कि वो इंजीनियरिंग कर सकती है बिकॉज शी नेवर imagined herself as an engineer. She Yeah. did it because her parents got her into an institute and she studied good. Yeah. She dropped 1 year. She gave CLAT, ठीक है, for entrance exam, for national entrance exam for law. And उसका उस साल मतलब उसने ड्रॉप लिया. She cracked it. She is in NLU Mumbai. NLU is National Law University. ठीक है, जैसे IITs होते हैं, जैसे एम्स होते हैं, So वैसे it's ही a top college for law aspirants, right? law. Yeah. So it's not about just medicine. जो करना है, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो ड्रॉप में कोई नहीं. At the end, it's the journey that is important, not the destination. I think. Very well answered. So अभी मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि so इंजीनियरिंग के लिए कैसा? You have to give JEE or CET, right? So what are the other exam, entrance exam for medical? So the thing that has happened actually 2016 से एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया मेडिकल एजुकेशन में कि there were initially जैसे CET था महाराष्ट्र में for engineering. The thing that has happened after 2016 is कि government was hell bent कि अभी बहुत बच्चों को हर state exam देने से बचाने के लिए they came with one nation one exam thing. So initially it was NEET 2013 में ही आ गया था but 2013 में फिर scrap हुआ फिर से CET आया फिर 2016 में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया पार्लियामेंट में कि अब कुछ नहीं होगा अब नीट होगा तो नीट इज अ बिल पास इन द पार्लियामेंट तो वो हुआ तो उसके बाद से सिर्फ नीट है ठीक है अब 2016 में नीट भी था एम्स भी था एम्स इज अ अदर इंस्टीट्यूट वो एक अलग बिल पार्लियामेंट ने 1950s में एक अलग बिल पास किया था एम्स के लिए तो वो उस बिल के अंदर नहीं आता था ठीक है तो एम्स ऑलवेज had an entrance exam, separate entrance exam. तो 18 में एम्स था, 19 में भी एम्स था. But the thing that has happened is 2020 में एम्स was like we want to dissolve our exam and we want कि अब एक ही एग्जाम तो अब इसके थ्रू ही सारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है. And also that has happened is all health courses जितने भी है to tell you about it जितने भी I want to share my screen actually I have written something for you so that would actually make it easy for you. So the thing is कि with MBBS is currently with NEET is 15 lakh students देते हैं ये एग्जाम ठीक है ये 15 लाख एग्जाम बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो किसके लिए compete कर रहे हैं it is a competitive exam they are competing for MBBS seats BDS seats BAM seats BHMS seats BSc nursing seats and OTPT is basically technicians जो होते हैं radiology technicians हो गए या audio therapist हो गए occupational therapist हो गए वो सब and veterinary courses मतलब animal doctors in layman term and also Unani medicine ठीक है so to talk about MBBS which is my field मतलब the field that I am pursuing actually so there are 85,000 seats in India currently okay in India there are 85,000 seats and out of which 25 to 30 are aided or government seats okay aided or government seats अब rest are private and deemed universities the thing about aided और गवर्नमेंट सीट्स है कि अगर मुझे किसको बताना हो कि फी रेंज क्या होती है टू टॉक अबाउट दिस महाराष्ट्र इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट फॉर एमबीबीएस ठीक है यहाँ पे फीस है 1 लाख के अराउंड पर ईयर ठीक है इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड इफ यू आर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स वहां पे फीस 25 to 25,000 में हो जाएगा तो एमबीबीएस में ठीक है आई विल ऐड दिस पॉइंट and about this 25 to 30,000 seats ये state में distributed है और national level पे counseling होगी like if there are 100 seats in a college like my college has 100 seats so out of this 85 seats are reserved for state students मतलब महाराष्ट्र के ही बच्चे यहाँ पे सीट ले सकते हैं इसके थ्रू मतलब महाराष्ट्र के ही बच्चे यहाँ पे ले पाएंगे सीट्स 85 कोटा के थ्रू और ये 15% is for other state people अगर to talk about my college is a bit different जहाँ पे 50-50 का है और यहाँ पे international students भी है तो my college is a different thing but most of the colleges follow this so this is differentiated into this so 85% seats are through state and national के अगर बात करूँ 15% है okay ठीक है and same goes for private and deemed universities ठीक है the thing that has happened in medical education is कि लोग जो पहले बोलते थे डोनेशन लगता है ये बिल्कुल बंद हो चुका है अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है अगर डोनेशन की अगर बात करें ना तो जो ये प्राइवेट कॉलेजेस है दे हैव सर्टेन मतलब उन्होंने कुछ रूल्स को ट्वीक किया उनके फेवर में एंड द थिंग दैट हैज हैपेंड एंड व्हाट आई हैव
विटनेस दिस, इनके पास है ना 85% सीट्स तो ये होंगी, 85% सीट्स तो ये होंगी और 15% ये देंगे नेशनल के थ्रू, और ये कुछ एनआरआई सीट्स रखते हैं, 5 सीट्स, ठीक है, परसेंट नहीं, 5 सीट्स एवरी ऑफ ऑल कॉलेज है एनआरआई। तो जनरली क्या होता है, एनआरआई स्टूडेंट्स नहीं अगर अवेलेबल हो तो ये 5 सीट्स मैनेजमेंट कोटा में चले जाते राइट, हैं, मैनेजमेंट कोटा। अब एनआरआई अगर कोई स्टूडेंट आता है ना तो उसको वैसे भी 5x फीस भरनी है, उसको वैसे भी 5x, 5 times, यस, उसको वैसे भी 5x फीस भरनी है, ओके, ठीक है। तो अगर कोई समझ एनआरआई नहीं आया तो ये सीधा फॉल करेगा मैनेजमेंट कोटा में। तो राइट, मैनेजमेंट कोटा में जब ये सीट्स जाएंगी तो यहाँ पे जो बच्चा आएगा जो एक्चुअली डोनेशन देगा, मतलब अंडर द टेबल, अगर कुछ ये अंडर द टेबल नहीं है, यहाँ पे उसको 5x फीस भरनी ही है, सो दैट Okay. इज द अंडर द टेबल। ये So- अंडर द टेबल कुछ नहीं था, अब ये लीगलाइज हो, So ये मिसकंसेप्शन था 5x ना, फीस देनी है। जो मिसकंसेप्शन था कि नहीं डोनेशन होता है, तो एक्चुअली ये जो फॉलो थ्रू है, ये फॉलो थ्रू है उसका कि एनआरआई का जो सीट्स होता है, अगर कोई एनआरआई सीट नहीं लेता तो मैनेजमेंट कोटा थ्रू आपको 5x फी पे करना पड़ता है। ठीक है, 5x। तो जैसे मैं अगर प्राइवेट का अगर एक फी रेंज बोलूं तो एनीवेयर 8 लाख मिनिमम होगा और आज के टाइम में 15 लाख तक जाता है प्राइवेट का, ठीक है, Okay. पर ईयर, ओके, एंड इट्स अ 4 ईयर कोर्स, 4 इयर्स आपको भरना है और फिर 1 साल इंटर्नशिप करनी है, ठीक है, पर एनम, ठीक है, पर एनम, आई हैव टू राइट इट हियर, Yeah, right. पर एनम, ठीक है, फॉरगिव मी फॉर माय हैंडराइटिंग। अरे नो इशू, समझ जाएंगे, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली ये वो है जिनके खुद के कोई यूनिवर्सिटी, खुद की यूनिवर्सिटी, yeah, right. ठीक है, यहाँ पे the fees can range from 18 lakhs to anywhere, sky is the limit, ठीक है, ये कुछ भी चार्ज ये Right. कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, Okay. तो 18 लाख इज मिनिमम, ठीक है, ये होता है। तो द थिंग इज 85,000 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया में। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं, बिकॉज टेक्निकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र कोटा, ठीक है, महाराष्ट्र की अगर सीट्स की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं ना, द थिंग इज महाराष्ट्र में अभी 4K सीट्स है। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस और कुछ अदर रिजर्वेशंस की वजह से सीट्स बढ़ी थी, तो 4K सीट्स है। इसमें जनरल के लिए 1000 सीट्स अराउंड है, और अभी शायद अभी के नंबर्स में थोड़ी बढ़ी है, शायद ये 1400 के अराउंड नंबर चले जाता है, 1400 सीट्स जनरल के लिए, एंड रेस्ट इज फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स फॉर जनरल, ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स है। तो इट माइट सीम कि जैसे अगर मैं बताऊं 15 लाख अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, 15 लाख अगर मैं बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू एम एमबीबीएस, ठीक है, उनका प्राइमरी एम एमबीबीएस होता है। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि पीपल एक्चुअली गो इनटू अदर फील्ड्स बिकॉज दे फील कि उनको एमबीबीएस नहीं मिला। लाइक आई फॉर टू गिव यू माय एग्जांपल, मेरे 18 में रैंक इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं बीडीएस ले लेता जस्ट बिकॉज मुझे एमबीबीएस नहीं मिली, नहीं मिल रहा। इट इज वन ऑफ द थिंग। तो इसलिए मैंने एमबीबीएस पे ज्यादा एम्फेसिस किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी एमिंग फॉर एमबीबीएस क्योंकि इंडियन मेंटालिटी है, एंड देयर कुड बी पीपल हु आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट बीडीएस। उनके बारे में टू टेल यू अबाउट महाराष्ट्र, एक्चुअली महाराष्ट्र में ओनली 4 डेंटल कॉलेजेस है। महाराष्ट्र में 4 डेंटल कॉलेजेस, इनको जीडीसीज बोलते हैं, जीडीसी गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस और एक नायर कॉलेज है मुंबई में, ठीक है, नायर कॉलेज इन मुंबई। तो ये नायर कॉलेज है, ये म्युनिसिपैलिटी कॉलेज, मतलब म्युनिसिपैलिटी इसको, मतलब बीएमसी इसको रखता है, बोल गया, ठीक है। तो 3 जीडीसीज एंड 1, तो इसमें अराउंड 600 सीट्स है, ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, इसमें अपने पास क्या है, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस है। प्राइवेट कॉलेजेस अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अगर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के बारे में अगर मुझे थोड़ा सा बताना हो तो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, अराउंड 20+ कॉलेजेस है, ठीक है। और महाराष्ट्र में अगर मुझे ये लिखना हो कि महाराष्ट्र में कितनी सीट्स, मतलब मैंने 4K सीट्स तो बता दी, महाराष्ट्र में टोटल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस बोलो एमबीबीएस के तो 23 के अराउंड है। अभी 2-3 नए कॉलेजेस आ रहे हैं आफ्टर द कोविड पैंडेमिक, बिकॉज अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ है कि दे नीड मोर कॉलेजेस, सो दैट इज वन थिंग। सो 23 कॉलेजेस है गवर्नमेंट, ठीक है, सो दैट इज द थिंग। टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस इन महाराष्ट्र 23, फॉर डेंटल इट इज 4, ठीक है, 3 जीडीसीज एंड 1 नायर हॉस्पिटल, ओके। तो आई गेस ये जो डाउट्स है उनका क्लियर हो चुका होगा। सो मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा है, टू टॉक अबाउट, बोलो to just completed with BAMS and BHMS, इनकी गवर्नमेंट में सीट्स कम है, but there are a lot of private colleges.
तो BDS, BAMS, BHMS इनमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस है. BSc nursing is a good option for females generally because Yeah, females का ऐसे होता है कि they are good with people. yeah, Like, they're good they with are people. good with people. They are very good at. So the thing that is always that most of the guys are good with things. So people who are good with things get into engineering, and Right. people who are good with people, मतलब good conversation, are Yeah, into this medical MBBS. in general in science. But there are other options as well. So ये है. So this was the whole thing that I had to talk about. कि ये seat matrix ये है. And I also talked about the fees thing. So this is the gist of the thing. So I guess आर्यन ने पूरा जो डाउट होगा आपका फीस का, सीट्स का सब क्लियर कर दिया होगा. So moving on to the next question, आर्यन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू करना चाहिए एज एन करियर एज एन एमबीबीएस एज ए डॉक्टर, सो 12th में वो क्या सोचता है कि नहीं प्रैक्टिकल ज्यादा होगा कि थियोरी सब्जेक्टिव ज्यादा होगा. सो व्हाट इज द परसेंटेज ओवर देयर प्रैक्टिकल और थियोरी? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? So the thing is, पहले if you're talking about the admission point of view, तो practical as such नहीं होता. Like you have to give a theory exam, ठीक है? But the thing is, जो questions आते हैं, they are actually practical oriented. Like if I have to tell you, वर्नियर कैलिपर्स एक चीज है जो 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है फिजिक्स के लैब. यू वुड हैव क्वेश्चंस ऑन वर्नियर कैलिपर्स, यू वुड हैव क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिक्स, ठीक है? ऑप्टिक्स मेजरली एक प्रैक्टिकल फील्ड है जहां पे हम एक्चुअली जाके मेजर करते हैं लैब्स में, ठीक है? तो वो सारी चीजें जो है जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकली करनी चाहिए थी, बट उनको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में डाल के तुम्हें टेस्ट किया जाता है, लाइक सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है? ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? बट अभी के टाइम में जो टेस्टिंग है फॉर नीट इज प्रॉपर अ थियोरी एग्जाम, मतलब थियोरी एज सच MCQ एग्जाम है. यू हैव 200 क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के हिसाब से एंड 180 क्वेश्चंस तुमको करने होते हैं और 20% का ऑप्शन मिलता है. ये इस साल से पैटर्न. अर्लियर वी ओनली हैड 180 क्वेश्चंस जो कंपलसरी होते थे 3 आवर्स में. सो यू गेट अराउंड 1 मिनट each question. सो ये जो न्यू अब से पैटर्न 20 क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिलती है. सो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं जो न्यू पैटर्न अभी जो आया है उसके लिए नीट की? ठीक है. The thing is earlier it was 180 questions 3 hours 720 marks. अब हो गया 200 questions 720 marks 3 hours but 20 questions का ऑप्शन है. तो आपको 20 questions का एक ऑप्शन मिल जाता है कि you can attempt the question you want and you can skip if you are not sure. And the marking that is there कि हर question को obviously +4 मिलता है और हर नेगेटिव क्वेश्चन को आपको -1 मिलता है. मतलब आपने गलत मार्क किया तो आपको नेगेटिव स्कोर -1. So that makes it a like a exam जिसमें आप तुक्के नहीं मार सकते. तुक्के नहीं मार सकते. जय माता दी. सो मूविंग ऑन, तो मेरा भी अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आप अभी 3rd ईयर में हो, राइट? सो जो फर्स्ट ईयर और जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हो रहे हैं एमबीबीएस कॉलेज में, तो उनके लिए ऐसा आपको गाइडेंस क्या प्रोवाइड करेंगे कि आप कोर सब्जेक्ट्स ये इनको आसान में मत लो, फोकस करो इन पे क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स ये आपको आगे हेल्प करेंगे. सो क्या गाइडेंस होगा आपको? See, देख कैसे होता है ना, MBBS is divided into 3 parts. It is pre-clinical, para-clinical and clinical. Clinical मतलब वो जो तुम डॉक्टर के पास जाओगे, the doctors that you visit are actually clinical branches के, बट कुछ होते हैं pre-clinical और para-clinical. Para-clinical वाले कौन? तो अगर तुमने कभी पैथोलॉजी के पास गए होगे, पैथोलॉजिस्ट के पास गए होगे, जैसे आप ब्लड सैंपल देते हो, जैसे आप ब्लड सैंपल दोगे, यूरिन सैंपल्स दोगे, कभी बायोप्सीज दोगे, कभी FNACs दोगे अगर कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है, तो वो सब के जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं मोस्टली पैराक्लिनिकल वाले. और जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं दे आर एक्चुअली मोर इनटू रिसर्च, जैसे फिजियोलॉजी होगी, मतलब नॉर्मल बॉडी कैसे काम करती है, फंक्शन, दैट इज फिजियोलॉजी. जैसे फर्स्ट टाइम 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर कि ये होता कैसे, लाइक दिस इज अ बाइसेप्स मसल, इसकी दो कंपोनेंट है, इसका अटैचमेंट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी एक्शन क्या है, ठीक है? एंड जैसे एक्शन तो हर जिम में जो जाता है उसको पता ही है, क्या फ्लेक्स करना, तो ये मूवमेंट्स, तो वैसे होता है. फिजियोलॉजी इज हाउ इट फंक्शंस एंड बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली सेलुलर लेवल पे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? ये होता है. तो जब आपका ये बेस क्लियर हो जाता है तब आप सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स एंटर करते हो. तब सेकंड ईयर में आपको बहुत सारी चीजें ना फर्स्ट ईयर के नॉलेज पे ही आपको आगे जाना है. अगर आपको जैसे एनाटॉमी में आपको स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोप में दिखाए जाते हैं एंड सेकंड ईयर इज मोस्टली ईयर जिसमें आपको बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे माइक्रोस्कोपी आएगी, मतलब आप बहुत सारे चीजों को अलग अलग स्टेन्स में देखोगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे. तो अब जब आपने उसको नॉर्मल क्या नहीं जाना तो आप गलत क्या हो वो कैसे जानोगे?
तो इसलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत ज्यादा बेस वाली चीज है। तो आप सेकंड ईयर में सीख कैसे चीजें, क्या ड्रग्स देनी। हाँ हाँ फिर क्लिनिकल से आप मैनेजमेंट सीखते हो कि आपका पेशेंट एक्चुअली आया तो आप उसको डायग्नोस कैसे करोगे, क्या टेस्ट करोगे, क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे, क्या दवा दोगे, कितने दिन के लिए दोगे, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आप क्या दवा दोगे, बच्चा है तो क्या दवा दोगे, राइट अगर किसी को रीनल फंक्शन है, किसी किडनी की इशू है तो आप क्या दवा दोगे और कैसे दवा दोगे। तो ये सारी बातें आ जाती। सो इफ यू टॉक अबाउट एमबीबीएस, वो पूरा स्टार्टिंगली डिफरेंट है नीट से। नीट में जहाँ पे सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे एक एग्जाम है, एमबीबीएस में प्रैक्टिकल का इक्वल वेटेज है, और whatever you are reading in your theory is actually to apply in your practicals। अगर आप प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको थ्योरी पढ़ने का कोई यूज use नहीं है। नहीं। So you should be very focused from the first year only to have proper Yes. knowledge in the medical field, right? I won't say focused, you should enjoy your time as well। Okay, okay. So पहला first, हाँ, but you should study। to study, that is the main thing, right? Okay. तो अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारे इंजीनियरिंग, सो आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, राइट? सो हमें लास्ट ईयर में कैंपस आते हैं, कंपनीज आते हैं, राइट? सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल फील्ड, सो व्हाट इज द प्रोसेस राइट देयर? See, the thing that is very good with medicine is कि आप जब मेडिसिन करते हो, मतलब एमबीबीएस करते हो या बीएमएस करते हो, बीएचएमएस करते हो, द थिंग विद इंडिया इज कि अभी WHO रेकमेंड्स कि 1000 लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए, बट इंडिया में इट इज अराउंड 2000 या 1500। so there is never a shortage of jobs। ठीक है, तो आप जैसे ही आप खत्म करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होता है, उनको पीजी कोर्स परस्यू करना होता है, like they want to become a surgeon, they want to become a gynecologist, they want to become a pediatrician, they want to become a pathologist, जो भी है 19 सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस में, there are PGs in all of the subjects। तो आपको जो बनना है वो बन सकते हो, मतलब आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि आप पीजी एग्जाम एंट्रेंस क्रैक करो, which is नीट पीजी, यू क्रैक दैट, यू गेट इनटू अ कोर्स, और फिर तो आप 3 साल उस कॉलेज के हॉस्पिटल में ही काम करते करते सीखोगे। ठीक है, बट अगर कोई लोग होते हैं जिनको अगर ये जो मोस्ट शॉर्ट रूट से अलग जाना है, जिसको एक्चुअली एमबीबीएस का प्रैक्टिस करना है, तो इजीली गेट अ जॉब एज मेडिकल ऑफिसर्स। जैसे जितने भी रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी म्युनिसिपैलिटी के ये होते हैं, क्या बोलते हैं, ओपीडीज लगती है, वहां पे मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर इज बेसिकली अ वॉक इन जॉब इन करंट सिचुएशन, कि डॉक्टर्स नहीं जा रहे एक्चुअली रूरल एरियाज, क्योंकि जो भी इश्यूज है, तो आप वहां जाते हो, आपको वॉक इन इंटरव्यू, आप सीधे जाओ, आपका इंटरव्यू होगा, आपके जो एमबीबीएस का मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है, राइट? तो बट इट इज अ, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको अराउंड 40 to 50K मिलते हैं पर मंथ। ठीक है, आप जैसे ही जैसे पीजी करते हो आप, तो पीजी में आपको स्टाइपेंड मिलते हैं, नॉट अ सैलरी, तो दैट इज अराउंड 60 to 80K पर मंथ, सॉरी पर मंथ 60 to 80K। तो आप पीजी करते हो तो आपका पे स्केल बढ़ता है, और जैसे ही आप पीजी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पे स्केल और ज्यादा बढ़ेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर अ स्टूडेंट, यू आर एक्चुअली अ फुल फ्लेज्ड डॉक्टर। तो वैसे होता है। सो आपके इसमें कैसे कि कोई कंपनी आके रिक्रूट करती है, इसमें ऐसे नहीं, यू कैन जस्ट वॉक इन टू द प्लेस यू वांट एंड यू कैन गेट एन एमओशिप, मतलब एमओशिप बोलते हैं सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स को, वो कर सकते हो। और देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक मोस्ट ऑफ माय सीनियर्स हु आई नो हैव डन यूपीएससी, मतलब ज्यादा जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी ज्यादा बातें हुई है, तो दे हैव डन यूपीएससी एंड देयर आर डिफरेंट एग्जाम्स इन यूपीएससी। या तो यूपीएससी जो नॉर्मल आईएएस आईपीएस वो है, एक होता है यूपीएससी सीएमएस, दैट इज कंबाइंड मेडिकल सर्विस। उसमें आप नेशनल लेवल पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट्स में मेडिकल ऑफिसर लगते हो, तो वहां पे पे स्केल ज्यादा बेटर हो जाता है। तो जिनको एक्चुअली यूपीएससी करना है, आईएएस करना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो थ्रू सीएमएस, वहां पे एक जॉब ले लेते हैं, उस जॉब में पढ़ते हैं, ताकि उनका एक स्टेबिलिटी तो है, पैसे आ ही रहे, और साथ में फिर ये एग्जाम क्रैक करने के लिए जाते हैं। सो दैट इज अनदर रूट। सो मोस्ट ये अभी तक फॉर्चुनेट है कि एमबीबीएस में यू इजीली गेट अ जॉब आफ्टर एमबीबीएस। सो वो स्ट्रगल एक्चुअली कम है। तो या दैट्स व्हाट आई प्रैक्टिस। तो हम लोग में इंजीनियरिंग में कैसा है, सो इफ यू आर इन टायर 2 और टायर 3 कॉलेज, व्हिच इज अ रियलिटी, there is a low possibility that you'll get a job. So most of our engineer what they do, they try to pursue masters. So ऐसा नहीं है मेडिकल फील्ड में। तो आपने जैसे बताया कि you can practice in the college as well as you can walk in, you'll get walk in jobs, right? So that's what's the main difference between, I guess, engineering and engineering tier 2 colleges and MBBS. Okay, so Aryan, मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो एस्पायरेंट्स है मेडिकल की, MBBS डॉक्टरेट का ड्रीम्स है 10th में 12th में, सो उनके लिए एज अ एल्डर ब्रदर आप क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहोगे? So firstly, you
have to have a core reason कि आपको क्यों करना है, ठीक है? Either it could be a stability of job जो इसमें है, it could be money driven, it could be because of family pressure पे तो नहीं करना चाहिए because you would be very unsatisfied and very you will feel very tortured. Like I have batchmates जो family pressure के जैसे डॉक्टरी कर रहे हैं, so they feel very tortured. So अगर ऐसा है तो I as an elder brother, frankly, I'll say it is not for you because if it is not your calling, you should not go. You might come for stability, but the thing is the amount of hard work that you have to do in this 5 years and also the coming time. If you do that same amount of hard work, you will get into equally paying job or equally stable job. I feel that. You see, the thing is, any field is not a bad field. अगर आप उसमें efforts डालो consistently, आपका अच्छा होगा. बट इफ यू आर रियली ड्रिवन कि आपको पेशेंट केयर, आपको जैसा मेरा इमोशनल रीजन था, अगर ऐसा कुछ है एंड यू रियली वांट टू हेल्प पीपल, तो दिस इज द फील्ड बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प पीपल. यू विल एक्चुअली फील ग्रेटिफाइड जब वो आपको थैंक यू बोलेंगे, जब आपको जो आप दवा दे रहे हो उससे एक्चुअली वो ठीक हो रहे हैं. यू विल एक्चुअली सी अ पेशेंट है जिसको सीजर्स हो रहे हैं, सीजर मतलब आखिरी आ रही है, आप उनको एक ड्रग दो और वो ठीक हो जाए. दैट इज अ जॉय कि आप देख आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई किया और वो ठीक हो गया. Yeah. ठीक है, तो दैट इज अ जॉय. अगर वो आपका ड्रिवन मोटिवेशन, वो आपका मोटिवेशन हो सकता है. तो ये सब है. अगर आपको पे स्केल के हिसाब से आना है तो यू मे कम, बट आई विल से देयर आर बेटर ऑप्शंस. यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल इफ इट इज योर मोटिवेशन की कुछ है रीजंस, तो आप आ रहे हो वेल एंड गुड, यू शुड कम. एंड इफ यूर because of family pressure, there are many people who go through this entrance and clear the entrance because of family pressure, but they feel very tortured. एंड समटाइम्स देयर आर आल्सो केसेस की फैमिली प्रेशर के साथ आए और फिर शायद पसंद आए, बट वो कम केसेस होते हैं. अगर फैमिली प्रेशर तो प्लीज मत करो, टू बी ऑनेस्ट, because it's you regret it. If I have to tell you as an elder brother, I won't say only good things. I also say the bad. It is very. There would be like when I have my exams, I would be sleeping for 2 hours for entire 14 days, 15 days. तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. तो वो हो जाता है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ड्रिवन मोटिवेशन तो करो. एंड फर्स्टली इफ यू आर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ नीट, the main thing I'll tell you is you should be disciplined rather than motivated. You should actually ये एक चीज बना लो कि आपको रोज पढ़ना है, because it is a 15 lakhs people दे रहे यार. It's not a joke. तुम जिस टाइम पे रिलैक्स करो कोई पढ़ रहा है. Right. Getting the point. Right. If you want to actually get into it, you have to work hard. रोज 4 to 5 hours का रीडिंग करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज. एंड बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इज एक्चुअली गेट इनटू अ क्लास लाइक अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज मतलब इट वुड बी ईदर अ ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, और अ elder brother actually teaching you anything, but you should have some. I'll say this is important because you देखो तुम 11th 12th की किताबें पढ़ तो लेते हो, बट तुम्हें ये नहीं पता ना कि क्या पूछा जाता है. वो तो एक्सपीरियंस जिसने वो किया है, एग्जाम निकाला, उसे पता है कि ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ से ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो तुम वो याद रखोगे. मेमोरी, लर्निंग और मेमोराइजिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज इंपॉर्टेंट rather than reading the entire thing. If you are a very brilliant student, तुम बिना गाइडेंस के भी निकाल दोगे. There are people in my college who have done that without guidance, but I will say it is easier. अगर आप कोचिंग ले सकते हो तो आप ले लो. There are very good YouTube lectures which would guide you very well, which will teach you very well. सिर्फ आपको नीट लेक्चर्स डालना है सब्जेक्ट्स के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मिल जाएंगे. सो फर्स्टली आपको एक गाइडेंस सोर्स होना चाहिए. फर्स्टली. सेकंड, आपको ये होना चाहिए गाइडेंस के साथ साथ अपने को करना ये ध्यान रखना है कि ये तेरा कॉलिंग होना चाहिए. अगर ये तेरा कॉलिंग नहीं तो मत कर, ठीक है. एंड थर्डली, यू शुड बी एंजॉयिंग द थिंग. आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो ये रोज अगर आपको पढ़ना है तो अगर आप एंजॉय करो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. Right. ये 2 साल के आपका अगर समझो हो जाता है, ठीक है, अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं होता तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. होते हैं लोग जिनका फर्स्ट बार में नहीं निकलता. यू शुड, इफ यू फील कि तुम ड्रॉप लेते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा था या फिर तुम कर सकते हो बेटर एक साल, इफ यू फील इवन अ स्लाइट ऑफ दैट, यू कैन टेक अ ड्रॉप, यू कैन गो फॉर द एग्जाम्स. आप एग्जाम्स दो. either you'll get MBBS or you'll get other peripheral fields. Yeah. Peripheral courses which are well and good. Like if I have to talk about BDS, it is a very specialized branch. आप सिर्फ oral cavity को deal कर रहे हो, ठीक है. एंड जो oral cavity के disorders है उसके लिए BDS के पास ही आएगा, ना कि MBBS के पास आएगा. right. वैसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन है. आज के टाइम में there is a ministry that is formed, आयुष मिनिस्ट्री. उसमें सारे ऐसे वाले कोर्सेज है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन,
तो इन सबको एक बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, नेचुरोपैथी, इन सबको बहुत अच्छा पुश मिल रहा है, तो इट माइट बी अ फ्लरिशिंग थिंग इन कमिंग टाइम्स, लाइक पीपल फील कि उनको ज्यादा हैम्पर हो रहा है ड्रग्स लेने से, मतलब दवाइयां लेने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से। ओके, सो थैंक यू सो मच आर्यन फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं अभी हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गेस्ट है आर्यन, वो क्लासेस भी लेते हैं, वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहो तो उनका मैं सेल नंबर हमारे लिंक में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर योर टाइम। प्लीज लाइक शेयर थैंक एंड यू। सब्सक्राइब।